वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस भी कह देते हैं, उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले विल स्टडी कांस्टेंट फंक्शन। As the name itself suggests that constant means something remains constant, value remain constant. तो ए फंक्शन का एब्रीविएशन फॉर्मेट होता है एफ एन अंडरस्कोर। ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर मीन्स whose domain is real number and codomain is real number, defined as f of x is equal to k, where k is any real number, is known as constant function. Now, why it is non-constant function? Because whatever is the input x, f of x is output. It is always same. Whatever you input as x, at every x it has same value k, constant value k. So in that sense we call it as a constant function. So how to make graph? अब k की वैल्यू तो नहीं है, k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सिनेरियो विल बी देयर, तो हर वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, बट बेसिक शेप विल रिमेन सेम. So draw your axis, x and y axis. fx is k. When we draw the graph, we'll take fx as y. So y equal to k will be a line parallel to x-axis at a distance of k unit. Absolute distance will be k unit. It will be upward if k is positive, downward if k is negative. And if k is 0, it will coincide with x-axis. So this is the line fx. This is the graph of fx equal to k or y equal to k. So graph is a line parallel to x-axis. Then domain. What is the domain? Domain is set of all real number, because for all x we can find f of x. The domain is set of values of x where function is defined. Function is defined for each real value of x. x की हर वैल्यू पे आप fx निकाल पा रहे हैं. रेंज क्या है? रेंज है y की वैल्यूज, fx की वैल्यू. fx क्या है? whatever is input, आउटपुट हमेशा k है, तो रेंज इज k. ऐसे नहीं लिखना है, रेंज इज ए सेट whose only element is k, where k itself is a real number. So range is k. So domain आ गया, range आ गया. So you must know the domain and range of these elementary functions. Next is identity function. Identity function. A function f from R to R defined as f of x equal to x is known as identity function. अब वैसे तो नेम क्यों है इतना विचार नहीं करते हैं, नाम रख दिया तो रख दिया, लेकिन आइडेंटिटी का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है. देखिए यहाँ इनपुट है x और f ऑफ x इज आउटपुट, तो इनपुट x है, आउटपुट भी वही है, तो इसकी आइडेंटिटी बची हुई है. इनपुट वही है, जो आउटपुट है वही इनपुट है, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. x पे वैल्यू f की x ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, आइडेंटिटी है. इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, एंड वी मे डिनोट इट बाय आई आल्सो. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. तो जब ग्राफ बनाएंगे विल ट्रीट इट एज y इक्वल टू x. fx को हम कहेंगे y इक्वल टू x. fx इक्वल टू x विल बी y इक्वल टू x. सो वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x. तो 0 पे 0 हो जाएगा. y इक्वल टू x की आप टेबल बना लीजिए. 1 पे वैल्यू विल बी 1,
2 points are more than enough for straight line, 2 पे 2 हो जाएगा. So you'll have this type of graph and you'll extend it. So this is y equal to x or fx equal to x graph. Now you will observe that this is 45 degree and it is similar in opposite quadrants. Symmetric in opposite quadrant. So it is a line y equal to fx equal to x क्या है? Line है passing through origin bisecting the angle in the first quadrant. 45 degree पे inclined होगी, आप ये measure कर सकते हैं. So we have to find its domain. Domain is set of all real number. Why it is all real number? X की जो भी value डालोगे fx जरूर निकलेगा. It won't happen that you put x and you are not able to find fx. For example, if fx is 1 by x, we can't find value of f at 0. 1 by 0 is not defined. But it is not happening in this question. इस question में ऐसा नहीं है कि आप किसी x पे f की value ना निकाल सके. For any real number x, you can always find fx. And range will be also r because it is identity function. तो y equal to x है, means input और output same है, तो output is range. Set of output is range. Range is set of all real numbers. So this is identity function. After identity function, let us discuss square function. Square function. A function f from R to R defined as f of x equal to x square is known as square function. Is known as square function. क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर फंक्शन इसको कहना बनता है. अब इसका ग्राफ आपने 10th में पढ़ा है. इट इज ए पैराबोला. y equal to x square. fx is what? y. When we make graph, we write fx as y because x जो है ना, अगर y से मैच होता है तो हम y को fx लिखते हैं. तो फंक्शन की डेफिनेशन में था ये. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो 0 पे 0 वैल्यू आएगी, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9. तो इसमें हमने टेबल नहीं बनानी होती. विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. यू कैन ड्रॉ द टेबल एंड देन मेक द ग्राफ. 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 1, -2 पे 4, -3 पे 9. So you need to have the idea of the shape. अब यहाँ पे टेबल बना के फिर ग्राफ बनाए ऐसा जरूरी नहीं है. बेसिक शेप का आपको आइडिया होना चाहिए. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको फोल्ड कर देंगे, वाई एक्सिस को क्रीज बना के इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट ओवरलैप करेंगे. तो डोमेन क्या हुई? डोमेन वो वैल्यूज है जिनके लिए एफ एक्स आ सके. तो क्या कोई एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर. तो कोई नंबर ऐसा है जिसका आप स्क्वायर ना निकाल पाए? स्क्वायर रूट में तो है, नेगेटिव का नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्वायर तो यू कैन ऑलवेज फाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. डोमेन मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स निकाल सके. एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर. तो यहाँ एफ एक्स हम निकाल सके का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर सकें. तो किसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? सभी नंबर्स का. तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर. नाउ रेंज. रेंज y की वैल्यूज हैं, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हैं. तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पे 0 है, फिर ये बढ़ती जा रही है. 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है एफ एक्स. इस साइड पे भी 0 पे 0 है, -1 पे 1 है, -2 पे 4 है. तो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो एफ एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. 0 से नीचे नहीं आ रहा है फंक्शन हमारा. तो 0 पे 0 है, 0 इंक्लूडेड है, और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक. तो रेंज इज 0 इंक्लूडेड, 0 पे क्लोज्ड, टू इन्फिनिटी ओपन. तो रेंज आ गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड.
अब स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन a function f from r plus to r plus to r defined as f of x equal to रूट एक्स, इसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, रूट एक्स इज नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ पे r प्लस का मीनिंग क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ऐसा इसलिए लिया है कि 0 से लेस पे तो रूट होगा नहीं। तो इसका ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। जीरो एक्स वाई, देन 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 पे स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 थोड़ा सा बढ़ेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये मत करना कि 4 का स्क्वायर रूट आप प्लस माइनस 2 लिख दें। आप किसी भी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में वैल्यू डालना, स्क्वायर रूट 4 2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसे प्लस माइनस नहीं लिखना। अगर मैं इसको प्लस माइनस 2 अलाउ कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूँ, यहाँ रूट x की वैल्यू लूँ, एंड इफ आई एट 4 अलाउ बोथ वैल्यू 2 and -2, इट वॉन्ट बी ए फंक्शन। फंक्शन नहीं बनेगा ये, क्योंकि एक x पे 2 y नहीं आ सकते। तो टू मेक इट इज अ फंक्शन वी टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका नाम होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। फॉर सिंप्लिसिटी विल राइट ओनली रूट एक्स। अब ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन आपके पास 10th क्लास से आया था। जब आप ये सॉल्व करते थे ना, तब आप ये सोचते थे कि x इज प्लस माइनस, आप x को अगर ऐसे लिखोगे ना √4, फिर ये लिखोगे प्लस माइनस 2, ये गलत है, √4 इज 2, यहाँ पे लिखोगे आप प्लस माइनस। इसका रीजन ये होता था x माइनस 2, x प्लस 2 इसके दो फैक्टर बनते थे, तो एक वैल्यू 2 आती है, एक -2 आती है। तो प्लस माइनस 2 यहाँ से आता है, रूट की वजह से नहीं आता। तो मेक दिस करेक्शन, क्योंकि 9 तक तो कभी भी रूट की वैल्यू आपने नेगेटिव में नहीं लिखी, 10th में आके लिखने लगते हैं। रूट नेगेटिव नहीं है, √4 आप किसी भी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में डालिए +2 ही आएगा। तो 0 पे 0 रूट, 1 का रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, तो आपके पास एक शेप का आइडिया लग जाएगा, इस टाइप की शेप आएगी, y is equal to square root x। so this is square root function। अब ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता ये, तो नीचे नहीं आएगा, और नेगेटिव का रूट होता नहीं, इधर नहीं जाएगा। तो डोमेन हमें यहाँ से पता लग रही है, डोमेन 0 का रूट आ सकता है, 0 से लेस का नहीं आ सकता, और रेंज भी यही होगी क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू रूट की 0 आ रही है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1.41 आ रहा है, 3 पे 1.73 आएगा, 9 पे 3 आएगा, 16 पे 4 आएगा, बढ़ता जाएगा, स्लो बढ़ेगा शुरू में, बाद में तेजी से बढ़ेगा। तो 0 to इन्फिनिटी, तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई। नाउ लेट अस डिस्कस क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन, a function f from r to r given by, this is r to r, given by f of x is x cube is known as cube function, is known as cubic function कह सकते हैं, better call it as cubic function, is known as cubic function। तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है, आप x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि एग्जैक्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको मात्र आइडिया चाहिए कि बढ़ रहा है घट रहा है। 0 का क्यूब 0 है, 1 का क्यूब 1 है, 2 पे 8 होगा,
3 पे 9 होगा, 27 होगा, तो ऐसे जाएगा। और -1 का क्यूब -1 होगा, -2 का -8 होगा, -3 का -27। तो you will see that its graph will go like this. Its graph will go like this. So graph of fx equal to x. तो डोमेन क्या हुई? कोई ऐसा नंबर जिसका आप क्यूब ना निकाल सके, स्क्वायर रूट तो था, नेगेटिव का नहीं निकाल सकते, लेकिन क्यूब आप सभी नंबर का निकाल सकते हैं। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज है एफ एक्स की, यानी कि वाई की वैल्यू देखो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जा रही है। -1000 का क्यूब -10 है ना, 1000 का क्यूब 10, सॉरी -10 का क्यूब -1000, 10 का क्यूब 1000। तो ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो मीन्स ऑल रियल नंबर। इसके बाद आज हम एक और फंक्शन लेंगे, क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, a function f defined from R to R as f of x is cube root of x is known as cube root function. क्यूब रूट भी आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो ये भी लगभग क्यूब जैसा ही इसका ग्राफ आएगा। देखो 0 का क्यूब रूट 0, 27 पे 3 आएगा, है ना, 27 का 3, 8 का 2, 8 मान लीजिए आप यहाँ, 8 का 2, फिर 27 का 3, तो ये ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे जाएगा। ऐसा लग रहा है पिछले ग्राफ को हमने रोटेट कर दिया। जितने भी ऑड nth रूट होंगे ना, क्यूब रूट, 5th रूट, 7th रूट, उन सब का ग्राफ इसी टाइप का होगा। और इवन स्क्वायर रूट का, जैसे 4th रूट, 6th रूट, उनका रूट x की तरह होगा। x2, x4, x6 सबके ग्राफ की शेप ऐसी पैराबोलिक होगी, और x3, x5, x7 की शेप x3 जैसी होगी। तो ये हमने आज कुछ बेसिक फंक्शन पढ़े हैं। तो बाकी बचे हुए फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सेट्रा। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैथ शिक्षा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।